सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए इस देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। With this spirit, I, Suchi, and I, Roshni, wish a very happy Republic Day to all the Indians. Today, we welcome you all in this virtual occasion of 72nd Republic Day on the behalf of whole Scottish family. 26th January holds an everlasting place in our national memory because it is the day when the Constitution of India was implemented. Let us commemorate our Republic with great enthusiasm and hope for a better future of our country. Being living in a democratic republic, we have freedom in mind, faith in our God, pride in our hearts, and patriotism in our souls. So, to reflect the contribution of our constitution makers on this auspicious day, here comes Adya with a speech to enlighten the knowledge on today's importance. इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है, गणतंत्र दिवस आया है। With these wonderful quotations today, I, Adya, wish you all a very remarkable Republic Day. Today is the day when our Constitution came into effect. The Indian Constitution, the longest written constitution in the world, is a result of immense hard work, dedication, and determination of all our great leaders. From Baba Saheb Ambedkar to Dr. Rajendra Prasad, the contribution of each one is remarkable. Here I would like to narrate an incident. It happened during the final proofreading of our constitution that a page went missing. Everyone was worried as there was no other written proof of our constitution. When Dr. Rajendra Prasad came to know about this, he called his writer and narrated the whole missing page. Yes, my dear friends, the whole constitution was by heart to Dr. Rajendra Prasad. Such was the dedication, determination, and perseverance of all our great leaders towards our motherland. For a nation to progress, a sense of true patriotism is most important. The meaning of patriotism is not constant every time. It changes with the passage of time. At the time of independence, our country demanded immense sacrifice and readiness to fight for freedom. That was true patriotism in those days. I would like to highlight the struggle of those days in a few lines. अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना. But today, our country only demands honesty and dedication towards our work, society, and nation. This is true patriotism nowadays. For our India to really prosper, a sense of true patriotism should exist in each and every citizen of it. Our country, India, will be developed that day when women of all our country feel safe in each and every corner of our country. When a person's identity is not limited to his caste or religion only, and when all the citizens of the country cooperate with the government. At last, I would like to salute all those people who are doing their work with great honesty and are dedicated towards the nation. Before ending my speech, I would like to say a few lines. नफरत बुरी है जनाब, न पालो इसे. दिल में खालिश है तो निकालो इसे. न मेरा न तेरा, न इसका न उसका. यह हम सबका वतन है जनाब, संभालो इसे. यह हम सबका वतन है जनाब, संभालो इसे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Amazing, Adya. You really expressed the need of the hour. Our next performance is somewhat interesting and unique. Yes, it's an act by Ramanathan Mizan. So please give them a big hand. Now I would gladly like to invite the Prime Minister of Republic of India.
all the ladies and gentlemen, all the members of the United Council and the Security Union, highly good evening to you all. Myself, a country of saints and angels, ऋषियों महापुरुषों के देश से, संतों के देश से, मैं उस देश का उत्तराधिकारी, प्रधानमंत्री, आप सभी जनता का, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गीता में कहा गया है, यस्याम ग्रीपंकज पराग पराधारा सतत योजनम संदर्शम हीन बुद्धि युक्तिमम एतत् एतत् बुद्धिचितम। तो इसका मतलब होता है कि अतिथियों का सत्कार। तो आज मैं आप लोगों के बीच आया, हालांकि दिल्ली में कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे आपातकालीन इस बैठक में आना पड़ा। कारण आप लोगों से छुपा नहीं है। हमारे देश के सैनिक सीमा पर जाते हैं, क्या करने? जी, देश की रक्षा ही करने, देश की रक्षा करने हमारे देश की सेना जाती है। बदले में 2 दिन बाद हमारे पास उनका शरीर पहुंचता है और कहा जाता है कि ये बदला पूरा हुआ। आपके शब्दों में कहा जाए तो इट्स अ रिवेंज, बदला लिया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? हम भारतीय हैं, माननीय, हम भारतीय हैं। हम 2 चीज जानते हैं, एक हाथ में हमारे पास माला होता है, हमारे अतिथि जो होते हैं उनका सेवा सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और दूसरे हाथों में हम भाला लेकर भी जानते हैं। अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम घर में घुसकर भी मारना जानते हैं। माननीय, मैं आप ही के बारे में कह रहा हूं। जी हाँ, नवाज शरीफ जी, मेरी इशारे आपकी तरफ है। अच्छा बैठिए, कुछ शब्द और है, बैठिए बैठिए। तो मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो कि ये मेरे द्वारा नहीं है, 135 करोड़ भारतीय जनता, मेरे भाई बहन प्यारों का है। तो ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। हम डरते नहीं एटम बम विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते नहीं एटम बम विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद और शिमला के कुछ ऐसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं, भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। अरे भीख में लेकर एटम बम, माननीय, अरे भीख में लेकर एटम बम तुम किस बात पे भूल गए? लगता है 56 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। तुम याद करो शिमला समझौता और भारत के एहसानों को। पाकिस्तान यह कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और है, बैठिए, और है। जहर पिलाकर मजहब का, कहा जा रहा है, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को। इसका मतलब हुआ, चलिए कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। जब मैं 10वीं कक्षा में था स्कूल में, तो वहां मुझे बताया जाता था, हमारे शिक्षक हमें बताते हैं गुड डेमोक्रेसी, दूसरी बैड डेमोक्रेसी। तो आज उस समय मैं समझता नहीं था क्या बोल रहे हैं, गुड डेमोक्रेसी बैड डेमोक्रेसी। मगर आज जब मैं देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हूं तो समझ आ रहा है कि गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी में अंतर क्या होती है सर जी। तो आज समझ आ रहा है। तो जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। माननीय, देश अगर खड़ा हो गया तो त्राही त्राही मच जाएगा, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगा। अब की चिंता मत कर, अब की चिंता मत कीजिए महोदय, अब की चिंता मत कर। इतिहास की क्या औकात, पूरा भूगोल बदल देंगे। इंग्लिश में आपकी भाषा में कहा जाए तो दिस टाइम डोंट टेक टेंशन, वी डोंट चेंज हिस्ट्री, वी ऑल्सो चेंज ज्योग्राफी, है ना। तो अब की चिंता मत कर, इतिहास की क्या औकात, पूरा भूगोल बदल देंगे। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा तिरंगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। चलिए
लिए धन्यवाद। और ये जो मैंने शब्द कहा, इसको केवल सुनेंगे नहीं, कहा जाता है सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, रही चाट फल अचल तनु, पाएगी तनि अनुराग। मतलब हुआ पहले सुनिए, जो कहा जाता है उसको सुनिए, फिर उसको समझिए, उसके बाद फिर उसको कीजिए, उसके बाद करिए। तो ये कुछ शब्दों का मैंने आज आप लोगों के बीच कहा। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। सुनने के लिए तमाम दुनिया से बड़े बड़े लोग पहुंचे हैं, बड़े बड़े दिग्गज डिग्निटरीज पहुंचे हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं। धन्यवाद। Wow, Ramanand, amazing. Everyone was just amazed to see your act in our mother tongue. Roshni, do you know the importance of today? Yes, this is the day when every Indian needs to recall their duties and rights given by our Constitution. So to throw light upon this theme, I would like to call Shraddha for her poetry. Vande Mataram everyone. I wish you all a very happy Republic Day. Today, on this memorable day of our 72nd Republic Day, I would like to recite a poetry written by Dr. Manoj Muntashir about freedom. The freedom which our freedom fighters and constitution makers dreamt of during that time. Were we able to achieve that freedom at that time, and are we living that freedom today? Let's find out. आजादी। करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा। करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा। सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी अकेला ब्रिटिश फौज से कंपनी बाग में लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंगे बसंती कहकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या बापू ने सिर्फ नोटों पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर और बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ है। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ है। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और टोपियों को शिवालों का। आजादी वो है जब ना सपनों के दरख्त फलने से डरे। आजादी वो है जब ना सपनों के दरख्त फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों के मुकद्दर बदल जाएं। आजादी वो है जब झुके हुए सरों के मुकद्दर बदल जाएं और खोलियों के दिल से हवेलियों के डर निकल जाएं और खोलियों के दिल से हवेलियों के डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ए बी सी से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की धुन आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। वो 50 वाला सब्सक्रिप्शन 21 में रिन्यू करना होगा। वो 50 वाला सब्सक्रिप्शन 21 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो। बस अगले ही मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। बस अगले ही मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। थैंक यू। जय हिंद। Thanks, Shraddha, for your divine poetry with such a deep meaning.
because it flies due to last breath of each soldier who died protecting it. Oh yes, I just remembered a few lines. आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। Yes, so now welcome the Shruti and their group to offer a song to pay tribute to your great freedom fighters.
हैं, हमें तड़पाते हैं, बेटी आती है, मुझे जाती है, किधर घबराओगे, किधर घबराओगे, लिखो घबराओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। ओ, ओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। This song really touched our hearts. Thank you, Shruti, Sapna, Shreya, Ramanand, and Nizam for such a soulful performance. Do you know, Rosni, I have always been proud of our great Indian cultural heritage. Yes, especially classical dance. It represents unity in diversity. I think we are talking about our next performance. So our next performer is Aparna with her semi-classical dance to show her love for our country. मैं जहाँ
हमसे क्या हमारी कहानी है, न पूछो हमसे क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। I think something is missing, no? Well, any event is incomplete without the national anthem of our beloved country. Thus, I would like to call the team to come on this stage and sing our national anthem, and Arundhati to play the melodious tune of Void. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thanks to all the singers for singing our national anthem. Because every time I listen it is an honor for me. My heart beats out of my chest. At last, before leaving, we both want to convey a message from our side. न सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफी नहीं है वतन प्रस्ती। यादों को नहीं भुला जो कुर्बान हुए, उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना। जिंदगी खुदा के लिए नहीं, वतन के लिए लुटाना, वतन के लिए लुटाना। Thanks to everyone for listening us so patiently. And once again, a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.